In the previous video of series, we have completed the proof of D'Alembert's ratio test. Today in this video, we will going to solve few questions which are important from the point of view of college examinations. So, my first question is, this is the first question. So, what D'Alembert's ratio test actually says, let's look into that. So, as we have seen in the previous video of the ratio test, we have the statement. Let's move to the conclusion first, that UN will be convergent if this UN by UN plus 1 is greater than 1, and divergent if UN by UN plus 1 is less than 1. And this test fails when UN by UN plus 1 is equal to 1. So we have to find out UN and UN plus 1, and the ratio will give the answer. So here first, what is UN? So this is 1 factorial, this is 2 so here it is, let's suppose this is 1 factorial. Okay, so this is 1 plus 2p by 2 factorial, 3p by 3 factorial. So the nth term will be np by n factorial. Okay, and the un plus 1 term will be n plus 1 whole to the power p by n plus 1 factorial. Alright, now we have to find out the ratio of both un by un plus 1. So now limit n tends to infinity, we have un by un plus 1 is equal to n to the power p upon n factorial, and this n plus 1 factorial by n plus 1 to the power p. Now here from this we have now we have to break this n plus 1 factorial. So we have n plus 1 into n factorial by n factorial n plus 1 to the power p. So here this will get cancelled. We are left with n to the power p n plus 1 by n plus 1 whole to the power p. Okay, here limit n tends to infinity. Now n plus 1, here limit n tends to infinity, n to the power p by n plus 1 to the power p. Now we are taking n to the power p common here in this case. First of all, this is n plus 1. Okay, so let's take n common. We have 1 plus 1 upon n here. Okay, and then just take out n outside from the bracket. So we have n to the power p because power is p. So we have ultimately this. So we are doing this so that this get cancelled and we will left with 1 by 1 plus n in the denominator and n plus 1 in the numerator. Now if we put limit n tends to infinity in this un by un plus 1, that is what? That is limit n tends to infinity n plus 1, 1 by 1 plus 1 by n to the power p. If we put n is equal to infinity, we have this complete 0 and this is 0. So 1 upon
1 we are left with. So finally 1 we are getting. So 1 which is greater. Now wait a minute, let me break it. We are putting n is equal to infinity here. So here infinity plus 1, and this is 1 by 1 by infinity to the power p. So this looks like this. Infinity plus 1 is infinity always, and this is going to be 1. So infinity product with 1 will give you infinity. Alright. So infinity which is greater than 1, okay, for all p. So we have three conditions, we have three rules. For convergent, u1 by u1 plus 1 have to be greater than 1. For divergent, it should be less than 1. So we are getting infinity which is greater than 1 for every aspects of p. So here we can say that D'Alembert's ratio test for the given series is convergent, okay, because hence this is greater than 1, so it is convergent by D'Alembert's test. Alright, so this is very easy question. Let's move into the next question. Now the next question is 2x plus 3x upon 8 plus 4x cube upon 27, and the nth term is already given in the question, that is n plus 1 by n cube x to the power n to infinity. Alright, so as we are given with the nth term, so the un term is n plus 1 by n cube x to the power n, and the un plus 1 term is, just simply put n plus 1 in place of n. Okay, so here n we will write n plus 1 upon n plus 1 whole cube x to the power n plus 1. So we have n plus 2 upon n plus 1 cube x to the power n plus 1. Alright, now we have to find out un by un plus 1. So un is this and un plus 1 is this. So just reciprocal n plus 1 cube by n plus 2 x to the power n plus 1. Okay, now here n plus 1 divided by n plus 2, we are just separating these terms aside and cubic terms aside. N cube by n plus 1 cube by n cube, and we are here left with x to the power n plus 1 upon n, here it should be x to the, wait, this should be in the denominator. Okay, so it is in the numerator and this is in the denominator. Alright, now as we see that these both the power are same, so we can take n cube outside the bracket. What I meant, this can be written like this, to the power n minus 1. Now n plus 1 upon n plus 2, I can take n cube outside from this numerator and denominator. So if I take n cube outside, I am left with, this is 1 plus 1 upon n whole to the power cube, and here n get cancelled and I left with x to the power minus 1. Alright, now this will get cancelled. I have n plus 1 upon n plus 2, 1 plus 1 upon n cube and 1 upon x. Okay, now
we will take n common here. So why we are taking n common in these case? ये चीज़, ये लॉजिक को समझना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ क्या है, ऊपर से क्या होते आ रहा है, ये जो लिमिट है ना वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो जब हम लोग n को इन्फिनिटी मैं जब रखूँगी, तो अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रख देती हूँ तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो आई हैव टू सिंप्लीफाई कि मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी ना करूँ इनको, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि और फर्दर सिंप्लीफाई करने की क्या ज़रूरत है, देयर इज़ नो नीड टू सिंप्लीफाई फर्दर, राइट, बट आई से दैट इफ आई पुट directly the value of n is equal to infinity, then I will do the blunder, it will completely get infinity. So in the previous case I have directly put infinity over here because we had no other options. आप क्या यहाँ पर n कॉमन ले सकते थे, अगर मैं ले भी सकती थी यहाँ पर n+1, यहाँ पर आप n क्या कॉमन लोगे? सो यहाँ पर जिस जगह में होगा, इन दिस केस ये हो रहा है, अगर मैं यहाँ n कॉमन लेती हूँ, आई लेफ्ट विथ 1/n बाई, यहाँ भी n कॉमन लूँगी तो 2/n, ये बच रहा है, ठीक है। तो ये मुझे इन्फिनिटी से रोक रहा है, इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटी दे रही हूँ, ये 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और ये 1/x बच रहा है। तो अल्टीमेटली जो un/un+1 है ना, वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर 1/x दे रहा है मुझे। इतना तक क्लियर है? हमारे पास 1/x आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, वी आर गिवन विद अ वेरिएबल। नाउ अभी 1/x, वी कैन नॉट फाइंड दैट दिस 1/x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और इज लेस देन 1 विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू पता करना पड़ेगा फॉर दैट। सो यहाँ पर लिखिए, सो x का 3 केस हो सकता है। इफ़ x इज लेस देन 1 देन गिवन सीरीज इज, अगर x, सुनिए 1/x है, अगर x 1 से छोटा होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा, तो अल्टीमेटली ये पूरा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दिस केस सीरीज़ क्या हो जाएगा, सीरीज़ इज कन्वर्जेंट। लेकिन अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है, सपोज 2, तो अल्टीमेटली इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने पर सीरीज़ क्या हो जाता है मेरा, डाइवर्जेंट, ठीक है। और इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, तो 1 होने से तो सीरीज़ फेल कर जाता है, द स्टेटमेंट इज़ फेल, सीरीज़ फेल, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट फेल, यहाँ पे लिखिए रेशियो टेस्ट फेल्स, ठीक है। सो जब इस तरह के केसेस अराइज होता है, तब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, तब हम क्या करते हैं, जो x का वैल्यू 1 में रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो un है ना, un, दिस इज़ un में x का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर यहाँ पर x का वैल्यू 1 रहेगा तो un n+1/n³ हो जाएगा, ठीक है। और जो vn है हमारे पास, व्हाट इज़ vn हमें un से पता करना पड़ता था, ठीक है। तो un से vn कैसे, अच्छा इसको लिख के करती हूँ। सो नाउ पुट, सो नाउ नॉट व्हेन x इज इक्वल टू 1, un इज इक्वल टू n+1/n³ एंड vn कैसे निकालना पड़ता है, ऊपर का हाईएस्ट पावर ऑफ n एंड नीचे का हाईएस्ट पावर ऑफ n। सो vn इज़ 1/n², all right। So un this and vn this, so this is the nth power of auxiliary series, that is vn, ठीक है, vn un। Now we know according to comparison test that un upon vn, limit n tends to infinity, un is n+1 upon n³ and vn is n². So this is, we left with n+1 upon n, and if we further simplify it, we are getting n common and 1+1/n. Now if we put the limit n tends to infinity here, I have
the value 1, which is this value is a finite and non-zero. Okay, so what we have applied here? Comparison test. So by the comparison test, we here find out that I'm getting the ratio of u and vn as 1. So u and vn, if the ratio is 1, that is a non-zero number. So by comparison test, we conclude that this un, the series un and vn converge and diverge together. Converge and diverge together. एंड वेन एवर हम कंपेरिजन टेस्ट से ये पता करते हैं कि वो दोनों कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा, क्योंकि 1 आया है जो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो अभी हमको एग्जैक्टली पता करना है कि ये डाइवर्ज करेगा कि कन्वर्ज करेगा. सो कैसे पता करते थे? सो वी एन जो सीरीज़ है वी एन वो क्या है? 1/n². और ये 1/n² का मतलब सीरीज़ क्या है? 1 + 1/2² + 1/3². So this is 1/1² till infinity, where जो 1/ ये n का पावर है वो p है. और ऑक्सिलियरी सीरीज, अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलियरी सीरीज, ऑक्सिलियरी टेस्ट, ये तो उसी में कैटेगरी में है. p अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होता है, p अगर 1 से छोटा है तो या इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होता है, अकॉर्डिंग टू p टेस्ट या ऑक्सिलियरी टेस्ट. ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं पावर क्या है? स्क्वायर है, दैट इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1. सो un, so this vn is convergent as p is greater than 1. Therefore un is also convergent. The given series, now you have to write, hence the given series is convergent when x is greater than equal to 1 and divergent when x is here x is less than equal to 1 and greater than, and divergent when x is greater than 1. Okay, here the given series. Now we are just एक बार recap कर लेते हैं क्या हुआ. So first of all we are given a series, उससे हम un और un+1 फाइंड आउट कर लिए. उसके बाद हम un और un/1 का रेशियो निकाले. तो रेशियो निकालने के बाद लिमिट लगाने के बाद हमारे पास एक 1/x आ रहा है. तो 1/x आ रहा है. अब ये x कुछ भी हो सकता है, ये x 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, या 1 के बराबर भी हो सकता है, राइट. तो हम क्या किए, un में जो un था उसमें x को 1 पुट कर दिया और उससे vn भी निकाल लिए, क्योंकि हमें कंक्लूजन में लाना था, कंक्लूजन लाना है. तो ऐसे करने पर हमें क्या मिलता है? un का वैल्यू vn का वैल्यू मिलता है. तो हम कंपैरिजन टेस्ट से ये पता कर लिए कि दोनों कन्वर्जेंट तो डाइवर्जेंट, दोनों में से दोनों कुछ ना कुछ तो होगा. अब हम p टेस्ट के हेल्प से ये देख लिए कि डाइवर्जेंट हो रहा है कि कन्वर्जेंट हो रहा है. तो कन्वर्जेंट आ रहा है, तो हेंस जो गिवन सीरीज था ना वो भी कन्वर्जेंट है. और वो किस कंडीशन पे कन्वर्जेंट है, मैंने ये यहाँ पर वही लिखा है. ठीक है, ठीक है. आई होप ये क्लियर है. नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, x/1 product 2 x² by 3.4 plus x³ by 5.6 plus x4 by 7.8. नाउ इस क्वेश्चन में ना हमें n का वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें n का वैल्यू खुद से आइडेंटिफाई करना होगा. तो सबसे पहले हम ऊपर न्यूमरेटर देख रहे हैं. न्यूमरेटर क्या? x², x³, ये तो सिंपल x का पावर n है, चल रहा है. नीचे लेकिन क्या है? 1.2, 3.4, 5.6. मतलब हम देख रहे हैं इसको, नीचे का सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो ये क्या हो सकता है? आप 2 मिनट सोचो, मैं भी 2 मिनट सोच रही हूँ. पॉज करके सोचो, ठीक है. तो
इसमें मैं देख रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हो रहा है ना, वो एक ऑड का हो रहा है, एक इवन का हो रहा है, एक ऑड का हो रहा है, एक इवन का हो रहा है, ऑड इवन ऑड इवन। तो ऑड को हम कैसे लिखते हैं? ऑड को हम कैसे लिखते हैं? 2n - 1 के फॉर्म में लिखते हैं। और इवन को क्या लिखते हैं? 2n के फॉर्म में लिखते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो इसको मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकती हूँ? nth टर्म un इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन, इसके लिए 2n - 1, इसके लिए 2n। ठीक है, मैं इतना लिख रही हूँ। अब आप मिला लो, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, सो आई हैव 2 - 1 दैट इज़ 1, और यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 2, तो 1.2 जो 1.2 है। फिर अगर 2 पुट कर रही हूँ 2 to the 4 - 1, 4 - 1 जो होता है 3, और फिर यहाँ 2 × 2 4। अब कोई बोलेगा कि आपने 2n - 1 तो लिखा है ऑड, लेकिन 2n + 1 भी ऑड होता है। तो मैं उसको बोलूँगी 2n + 1 भी ऑड होता है, लेकिन यहाँ पर अगर 2n + 1 करोगे ना तो 2 × 1 दैट इज़ 2 + 1 3 आ जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको वही लॉजिक दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हमने दिमाग लगा लिया, हमारे पास un एकदम है, और हम लोग चेक भी कर लिए कि ये सही है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट un + 1। तो un + 1 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ n का वैल्यू हो वहाँ n + 1 लगा दो। सो सिंपल, n + 1 - 1 to n + 1। ठीक है, इसको फाइनली लिख देते हैं यहाँ पर, that un by un + 1 is x to the power n upon 2n - 1 2n divided by x to the power, यहाँ पर x to the power नहीं, में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर उसको सॉल्व करके जैसे 2n + 1, तो ये आप इधर सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पर 2n + 2 - 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2n + 1 बचेगा, और यहाँ पे 2n + 2 बचेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? 2n + 1 और 2n + 2, और यहाँ पर आ जा रहा है x to the power n + 1। So what we can do here, we just separate this term aside, and this term aside. So by doing this we get, this will be 1/x। देखिए यहाँ पर 1/x हो जाएगा, क्योंकि x इन्वर्स है तो 1/x हो जाएगा यहाँ पर। एंड इन दिस केस हमें क्या करना है? जब कुछ नहीं सूझे जस्ट n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो तो है होगा क्या? 2 + 1/n बचेगा। यहाँ से n कॉमन लेने से 2 - 1/n बचेगा। यहाँ से n कॉमन लेने से 2 + 2/n बचेगा, और यहाँ से n कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। x to the power n, यहाँ पे 1/x डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब देखो, ये से ये n कट जाएगा, ये से ये n कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 + 1/n by 2 - 1/n into 2 + 2/n into 1/x। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि अब फर्दर हम क्या n को थोड़ी कुछ कर सकते हैं, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँगी मैं यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सो यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ 0 होने से 2 बच रहा है, यहाँ 0 होने से एक और 2 बच रहा है, यहाँ 0 होने से 2 बच रहा है, और एक 1/x बच रहा है। कहीं मैं एक और 2 को छोड़ तो नहीं दी? अरे यहाँ पर 2 एक बचा हुआ है ना, तो ये है, तो ये 2 2 2 2 क्या कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/x बच रहा है। अब फिर से 1/x बच गया, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब तो आपको पता है, अब 1/x, अब मैं इसको अच्छे से लिख दे रही हूँ, इफ़ x इज़ लेस देन 1, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरा x 1 से छोटा है तो द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। क्यों? अगर मैं 1 से छोटा वैल्यू रखती हूँ तो ये पूरा 1 से बड़ा वैल्यू देगा। सपोज़ यहाँ 0.5 रख रही हूँ, 0.5 मतलब 1/2,
1/2 रखने पर ये ऊपर जाके 2 दे देगा, ठीक है। तो 2 क्या है, ओवरऑल बड़ा है। तो इफ x इज लेस देन 1 द सीरीज, यहाँ पे द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। फॉर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ये मैं पूरा लिखी हूँ जस्ट आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये केस 1 रहता है। केस 2, अगर x इक्वल इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, अगर x यहाँ पर 2 दे दूँ तो ओवरऑल क्या छोटा हो जाएगा। सीरीज इज divergent for then limit n tends to infinity un by un plus 1 is less than 1. Okay, if x is equal to 1, अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो वी हैव un, जो un हमारे पास था x टू द पावर n बाई 2n माइनस 1 इंटू 2n, उसमें x का वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास 2n माइनस 1 2n आएगा। और vn हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँ उसके बाद vn का सॉल्व करती हूँ। इसको अच्छे से सॉल्व करने का मतलब इसको अंदर कर देना, 1/4n स्क्वायर माइनस के 2n। तो यहाँ पर मैं अगर n स्क्वायर कॉमन ले लूँ सो हमारे पास 4 माइनस 2/n आ रहा है, ठीक है। 4 माइनस 2/n और इसको 1/n स्क्वायर, यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 2/n, सॉरी 2 माइनस 1/n और यहाँ पे 2। un को मैं सिंप्लीफाई करके इतना लिख ली। अब vn क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर मुझे vn तो साफ साफ दिख रहा है 1/n स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर तो इनका पावर ही नहीं है, नीचे n स्क्वायर है। अब क्या करना है, un/vn कर देना है। तो जैसे आप लोग करते हो, नेक्स्ट पेज में करती हूँ। नाउ कंपैरिजन टेस्ट लगा रही हूँ ना, लिमिट un अपॉन vn। अच्छा, क्यों कंपैरिजन टेस्ट लगा रही हूँ ये भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं x इक्वल टू 1 कर रही हूँ और 1 पे फेल होता है, तो फेल हो रहा है तो इसीलिए मैं कंपैरिजन टेस्ट की मदद से दिखा रही हूँ कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। समझ आया? मैं प्रूफिंग वाली क्लास में ही बोली थी, अगर कुछ फेल होता है तो हम दूसरा टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर नहीं, हमको 1 का वैल्यू लाना है, x का वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पर क्या चाहिए, हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 1/x क्या, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले माने कि x अगर छोटा होगा 1 से, x छोटा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट होगा, अगर x बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अगर x 1 हो गया तो क्या होगा, तो हम वो ला रहे हैं अगर x का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो अब un में हम लोग 1 x का वैल्यू 1 पुट किए तो फिर हमारा u1 आया, vn आया। अब दोनों का रेशियो करने पर क्या आएगा, 1 बाई यहाँ पे n स्क्वायर 2 माइनस 1/n, यहाँ पर 2 कर देना और इंटू n स्क्वायर कर देना, ये कट गया तो क्या आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे वही 4/1 माइनस n, और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगी तो ये 1/4 हो गया। तो un/vn 1/4 हो गया। 1/4 मतलब कि 0.2, ठीक है। तो वो क्या है, अब 1 वो तो छोटा है, अब 0.2 मतलब समझो, मतलब वो 1 से क्या है, छोटा है, विच इज़ लेस देन 1। सो हियर कोई, लेकिन 0 के इक्वल तो नहीं है ना, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटा है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। सो सीरीज un एंड vn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। बट ये जो vn है, vn हमारे पास क्या है, vn हमारे पास vn इज इक्वल टू ये ऐसा, मतलब 1/1/2 प्लस 1/2/2 1/3/2। तो हियर n p इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो vn इज कन्वर्जेंट। सो vn कन्वर्जेंट है, सो vn कन्वर्जेंट हो गया, जिसके कारण un है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर un इज ऑल्सो
कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, बाई यहाँ पे पी टेस्ट लिख दो, ठीक है। सो इफ x इज इक्वल टू 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। आ गया? कोई इसमें कुछ था? फिर से रिकैप करा देती हूँ। हमें ये सीरीज़ गिवन था, हमें un निकालना था, हमें un+1 निकालना था, ठीक है। फिर हम लोग ने उसका रेशियो निकाला, क्योंकि ये रेशियो टेस्ट है तो रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर लिमिट मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग मिस्टेक मत करना, सब में लिमिट लगाना, ठीक है। उसके बाद दोनों का रेशियो करने पर हमें फाइनाइट नहीं मिला, 1/x मिला। अब x का वैल्यू तो पता नहीं हम पता कर रहे हैं, अगर लेस देन होगा तो इतना होगा, ग्रेटर देन होगा तो इतना होगा, लेकिन 1 होगा तो कितना होगा, तो 1 होगा तो हम un और vn में x का वैल्यू 1 पुट करके देखे। 1 पुट करने के बाद हमें मिला कि नहीं, उसमें x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद हम लोग एक दूसरा टेस्ट लगाए और जिस टेस्ट से पता चला कि नहीं ये कन्वर्जेंट ही है। सो इफ x इज इक्वल टू 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अभी बहुत अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस हैं। एक और वीडियो में मैं और इससे थोड़ा लेवल अप करूँगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बाय बाय।